So now we have done distance, displacement, speed, uniform speed, non-uniform speed and average speed. There is a specific case in average speed actually. जैसे मान लीजिए कि दो डिस्टेंसेस हैं इक्वल, दोनों का हमने एस लिख दिया. मान लीजिए पहले हिस्से को स्पीड u से कवर किया और दूसरे हिस्से को स्पीड v से कवर किया. ऑब्वियसली एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, टाइम नहीं हमारे पास, तो निकाल लेते हैं पहले. वही पुराना तरीका हमने लिख दिया, लाइक केस 1 डिस्टेंस s, टाइम सॉरी स्पीड u, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब हमारे पास टाइम्स हैं, ये s बाय u है, ये s बाय v है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s प्लस s, दैट इज 2s होल अपॉन s बाय u प्लस s बाय v. दैट इंप्लाइज व्हाट? आप इसको ऐड कर दीजिए तो s कॉमन ले लेते हैं, 2s और s कॉमन तो आ जाएगा 1 बाय u प्लस 1 बाय v. अगर ऐसा कर दिए तो क्या हो जाएगा आपके पास? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s कट गए, 2 यहां आ गया और यहां पे क्या आ जाएगा v प्लस u अपॉन uv. u ऊपर कर दीजिए तो जाएगा 2uv अपॉन u प्लस v. एवरेज स्पीड निकालने का ये तरीका तब काम आएगा जब दोनों कवर डिस्टेंसेस इक्वल हो और हमें स्पीड्स दी गई हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल दे दें कि अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिख दीजिए सिंस द टू डिस्टेंसेस कवर्ड आर इक्वल हेंस एवरेज स्पीड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. सो सिंपली द एवरेज स्पीड विल बी 2 into 30 into 60 अपॉन 30 प्लस 60, जो भी होगा ये हो जाएगा 90 आपका. सो 2 into 30 into 60 अपॉन 90, 30 3s are 3 20s are 40 kilometers per hour. Answer simple. There is another scheme or another way of getting average speed, but this is in one specific case where the two distances are equal. You can keep doing the same if the distances are 3 or 4. I will continue in this topic of average speed little later because we have to proceed ahead now. We are new learning another topic called velocity. Generally, speed and velocity are one and the same, but not always. Suppose a car is moving in this direction with a speed of 40 kilometers per hour. If somebody asks you, what is the speed? It's 40 kilometers per hour, sir. Another car moves in this direction, let's say, with 40 kilometers per hour only. You'll say, what's the speed? So 40 kilometers per hour. That means, whatever direction the car is moving, the speed is 40, the speed is 40. It does not depend on the direction. But if we are talking about one-dimensional motion, then there are two possible directions. If this is the line of motion, this is one direction, this is the other. Let's take one of them as positive. Let's say this one is positive, this is negative. In that case, if somebody asks you, what is the speed here, what's the speed there, it will always remain 40. But if somebody asks you, what is the velocity of first car, you will say 40 kilometers per hour, sir. But if somebody asks you, what is the speed of the second car, what is the velocity of the second car, you have to say minus 40 kilometers per hour, because when we say velocity, we do not just mean speed, we also mean the direction. That means these two speeds may be equal, but the velocities are not equal because their directions are different. So what is velocity? It is speed only, but with direction. So how do we define it? We'll say velocity can be defined as, or velocity gives you how, indicates how fast the body is moving in a particular direction, and it is given by displacement covered per unit time, not distance, displacement covered per unit time. Again, जैसे हमने स्पीड निकाला था उसमें क्या क्या वर्ड्स पढ़े थे? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड. तो यहां भी हम पढ़ते हैं पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर किसी चीज की स्पीड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो,
हम उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आपको याद ऐसे करना है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन। आपको याद ही ऐसे करना है। बोले व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? से बॉडी मूव्स इन सेम विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। सिंपल। याद करिए यूनिफॉर्म स्पीड कैसे किया था? सेम स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे किया? सेम स्पीड सेम डायरेक्शन। तो अगर कोई एक चक्कर लगा रहा है ग्राउंड में और उसकी स्पीड परमानेंटली 20 किलोमीटर पर आवर है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है क्योंकि स्पीड बदल नहीं रही है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है क्योंकि हर अगले पॉइंट पर उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिर्फ तभी संभव है जब सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड में कोई चीज चल रही है। ध्यान रखिए। तो नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्पीड या वेलोसिटी में से कुछ भी बदला, आपने ब्रेक लगाया वेलोसिटी कम हो गई, आपने एक्सीलरेटर दिया वेलोसिटी बढ़ गई, आप मुड़ गए भले स्पीड सेम थी वेलोसिटी बदल गई, कुछ भी बदला तो वेलोसिटी बदल जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेम स्पीड सेम डायरेक्शन। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और क्या फर्क है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में? मान लीजिए अगर कोई सीधा जा रहा था, 20 किलोमीटर कवर किए और 2 घंटे में किए। मान लीजिए कोई साइकिल से जा रहा है, 20 किलोमीटर कवर 2 घंटे में। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? वैसे 20 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स काट देंगे, 10 किलोमीटर पर आवर या स्पीड आ जाएगी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना? वो 20 किलोमीटर सीधा गया था, तो फिर वही 20 किलोमीटर 2 आवर्स 10 मिनट पर आवर। इसका मतलब है अगर डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम। लेकिन जरा आप देखिए, मान लीजिए कोई 20 किलोमीटर गया, 2 घंटे में गया और वहां से 10 किलोमीटर लौट आया और लौटने में भीड़ बहुत थी, तो मान लीजिए लौटते समय भी उसको 2 घंटे ही लग गए। बताइए एवरेज स्पीड क्या हो? तो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ 30 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन हुआ 4 आवर्स, आप काटेंगे 7.5 किलोमीटर पर आएगी एवरेज स्पीड। लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी नापने जाएंगे तो आप देखेंगे पहले यहां थे अब यहां हैं, तो ये डिस्टेंस बना 10 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 10 किलोमीटर और आवर्स कितने होंगे? 4 आवर्स, कितना होगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। जरा इसको देखिए और इसको देखिए, दो अलग अलग वैल्यूज हैं। इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर लेते हैं और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस, इसलिए एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती। अगर बॉडी चली तो एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी में अगर मान लीजिए 20 जाके 20 आ गया होता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। तो ये था आपके लिए वेलोसिटी। आई एम श्योर आपको यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज वेलोसिटी समझ में